Everyone. Today we will discuss about class 8 science chapter 9 reproduction in animals. So now in all the life process, okay, like nutrition, respiration, transportation, excretion, okay, are essential for all living things. Okay, same, okay, reproduction is also essential for living organism. So otherwise, okay, there will be a generation gap. Is it clear? So reproduction is the also, okay, part of the living organism. So now as a first, what is the reproduction? So reproduction is the process by which living being produce young ones of their own kind. So reproडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है इन विच जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं वो क्या करते हैं, अपने जैसे ही एक नए बेबी को या नए यंग को बर्थ करते हैं, नए यंग को पैदा करते हैं, नए यंग को जनरेट करते हैं वो. सो वंस अगेन, ओके, सो रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग बीइंग प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड, यानी अपने जैसे ही एक नए यंग का प्रोड्यूस करना क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है. So now there are two types of reproduction. First, asexual reproduction, and second one is a sexual reproduction. Okay. So asexual reproduction. Okay. What is asexual reproduction? Asexual reproduction are those reproduction in which new individual are produced from a single parent. In asexual reproduction, okay, the new individual produced by a single parents. Okay. मीन्स एक सिंगल पेरेंट क्या करता है, एक नए इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करता है. मीन्स इसमें मेल और फीमेल की जरूरत नहीं होती है. इज इट क्लियर? सो इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली अ सिंगल पेरेंट प्रोड्यूस अ न्यू इंडिविजुअल, बट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यू कैन से न्यू इंडिविजुअल आर प्रोड्यूस, ओके, बाय अ टू पेरेंट्स एज अ मेल एंड फीमेल दोनों होने चाहिए. उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होने चाहिए, both necessary होने चाहिए, यानी मेल एंड फीमेल both are necessary in sexual reproduction. Now see, there is a different types of example here. Involves the sexual reproduction are those reproduction in which the formation involves the formation and fusion of the male and female gametes. जिसमें क्या होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट्स क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं और नए एक सेल का फॉर्मेट करते हैं वो. फिर मीन सपोज करो अगर यहाँ पे एक मेल गैमेट है और फीमेल गैमेट है, ओके, सो मेल गैमेट्स प्रोड्यूस स्पर्म एंड फीमेल गैमेट प्रोड्यूस ओवम और एग, या तो ओवम या एग प्रोड्यूस करते हैं फीमेल गैमेट्स. ओके, सो मेल प्रोड्यूस मेल गैमेट एंड फीमेल प्रोड्यूस फीमेल गैमेट, एंड मेल गैमेट्स नोन एज अ स्पर्म, फीमेल गैमेट्स नोन एज अ ओवम. when they fuse together, okay, then it form a zygote, and zygote after cell division, okay, after this division a baby will be formed. So now see, okay, in sexual reproduction, okay, so each parent produce gametes, and male and female both, okay, or you can say as a sex cell also. So each parents produce gamete or sex cell, okay. It should be as a male produce male gametes and female produce female gametes. Now, and the female produce female gamete, that is known as a ovum or egg, okay, and when they form it produce zygote and then new baby will be formed. Now like this, some animals like frog, bird, reptiles, human, okay, they can produce only one kind of gamete, either sperm or egg. कुछ ऐसे भी एनिमल जैसे फ्रॉग हो गए, फिशेस हो गए, बर्ड हो गए, ये क्या करते हैं, या तो आपका स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं या फिर एग प्रोड्यूस करते हैं. तो ऐसे एनिमल्स क्या कहलाते हैं, यूनिसेक्सुअल, ओके, यूनिसेक्सुअल एनिमल्स. तो व्हाट आर द यूनिसेक्सुअल एनिमल्स, दोज एनिमल्स विच प्रोड्यूस ओनली स्पर्म और एग, दैट इज नोन एज अ यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म. and those animals which produce, okay, both as a sperm or egg, so that is known as a bisexual animals. so unisexual animals क्या करते हैं, या तो sperm प्रोड्यूस करेंगे या फिर एग प्रोड्यूस करते हैं. बट
अब इसमें जैसे अर्थवार्म हो गए आपके, ठीक है ना, और लीचेस हो गए, ये क्या करते हैं फिर, बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस बाय द सेम इंडिविजुअल, ये क्या करते हैं, बोथ मेल भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और फीमेल भी प्रोड्यूस कर सकते हैं गैमेट, यानी एक ही जो हो गया अर्थवर्म चाहे लीचेस, ये क्या करता है, दोनों प्रोड्यूस कर सकते हैं, मेल भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और फीमेल भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये किसने क्या, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं, बाइसेक्सुअल एनिमल्स। एक बार और सुनो आप, जैसे फ्रॉग हो गए, फिशेस हो गए, एनिमल्स हो गए, क्या करते हैं, या तो स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं या फिर एग प्रोड्यूस करते हैं। दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज अ यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। बट सम ऑर्गेनिज्म लाइक अर्थवर्म, लीचेस, दे प्रोड्यूस बोथ male and female gametes. That's why it is known as a bisexual organism. So next one is a fertilization. I have not written in this board, but now see what is the fertilization. Okay, so fertilization is the process, okay, of fusion of male and female gamete to produce zygote. When male and female gamete produce and they form zygote, so this process is known as a fertilization. Once again, what is the fertilization? When male gametes and female gametes, okay, fuse together to form zygote, then this whole process is known as a fertilization. Now it should be a two types, one external fertilization, second one is a internal fertilization. Now external fertilization, you see there will be in rainy season, okay, द एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग हो गए आपके एंड टोड्स हो गए, वो क्या करते हैं, पॉन्ड में इधर उधर मूव करते रहते हैं। तो फीमेल जो होती है ना, वो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं अपने फीमेल वाटर में एग को प्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है ना, और जो एग होते हैं ना वो जेली लाइक सब्सटेंस से वो प्रोटेक्ट रहते हैं। ओके, देन अब वहां पे जो मेल आते हैं ना, अपना एग्जैक्ट या स्पर्म छोड़कर चले जाते हैं, ठीक है ना, वो एक क्या होते हैं फिर स्पर्म से मिलकर वो नए इंडिविजुअल को फॉर्म कर सकते हैं फिर। सो वंस अगेन देखो होता क्या है इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जो फ्रॉग हो गए, टोड्स हो गए, क्या होते हैं पॉन्ड में स्लो मूव करते रहते हैं इधर उधर। सो मेल एंड फीमेल क्या करते हैं, आपस में क्लैश करते हैं। देन फीमेल क्या होते हैं, बहुत सारे 100 ऑफ एग्स क्या करते हैं वो वहां पे छोड़ जाते हैं, वो एग्स प्रोटेक्टेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस। नाउ द मेल क्या करते हैं, इजेक्ट करते हैं उस क्लस्टर पे, वो भी क्या करते हैं उनके इस पर फ्लोट करते हैं। देन व्हेन एग और स्पर्म देन मिक्स टुगेदर, ओके, then fertilization process will be happen. Is it clear? Once again, frog toads हो गए, ठीक है ना, तो क्या करते हैं वाटर में मेल या फीमेल आई, ठीक है ना, वो एग प्रोड्यूस की, एग जेली लाइक सब्सटेंस से सेफ है, देन मेल eject sperm on that place, okay, then fertilization process will be happen. This happen through external, okay, that's why it is known as a external fertilization. Now internal fertilization ऐसे रेप्टाइल्स हो गए, मैमल्स जैसे काउ, डॉग, कैट हो गए, ठीक है ना, ह्यूमन बीइंग्स हो, इसमें क्या होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स ऑकर इनसाइड द फीमेल बॉडीज। इसमें क्या होता है जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है इट शुड बी हैपन इन द फीमेल के बॉडी के अंदर होता है वो, ओके, दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज नोन एज अ इंटरनल फर्टिलाइजेशन। सो इन इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ओके, it should be happen, okay, male and female gametes occur where inside the female's body, that's why it is known as a internal fertilization. So now reproduction in humans, so now हमें पता है ना in humans it should be a unisexual fertilization, okay, so each male and female there will be a reproductive system, okay, and its process will be in the female's body. So now see what are the male reproductive system. First, a pair of testes, 2 sperm ducts and penis. So now the main reproductive organs in male human, okay, as a first a pair of testes हो गए आपके, ठीक है ना, and testes क्या करते हैं, वो मेल गैमेट को प्रोड्यूस करते हैं, testes प्रोड्यूस मेल गैमेट्स, और स्पर्म इनकी जो संख्या होती है नंबर वो क्या होती है मिलियंस भी होती है फिर, ओके, एंड ईच स्पर्म इज अ सिंगल सेल हैविंग द यूजुअल कंपोनेंट। जितने भी सपोज मैंने बताया क्या बहुत सारे स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं ना, मिलियंस ऑफ स्पर्म, एंड ईच स्पर्म में क्या होता है एक सिंगल सेल भी वहां पे प्रोड्यूस होता है फिर, ओके, एंड इसमें क्या होता है एक स्मॉल पॉइंटेड हेड होता है इसका, ठीक है ना। अगर हम स्पर्म के बारे में डिस्कस करेंगे देन स्पर्म में एक स्मॉल हेड होते हैं, फिर मिडिल पार्ट होता है और एक लॉन्ग
टेल इसका बना होता है फिर। इज इट क्लियर? देन स्पर्म हैव ईच टेस्टिस थ्रू अ स्पर्म डक्ट। स्पर्म कैसे होता है, लीव होता है स्पर्म डक्ट से, क्या होता है स्पर्म वहां से रिलीज होता है फिर, ओके। एंड मिक्सचर ऑफ स्पर्म एंड फ्लूइड इज कॉल्ड सीमन। अब कोई पूछता है व्हाट इज द सीमन, तो व्हेन स्पर्म मिक्स विथ फ्लूइड दैट इज नोन एज अ सीमन। द स्पर्म देन स्विम इन द फ्लूइड एंड रीच द यूरेथ्रा। ओके, स्पर्म क्या होता है, स्विम करते हुए ना फ्लूइड से जैसे मिक्स हो जाता है, देन वो यूरेथ्रा के होते हुए क्या आ जाता है, वो पेनिस में आ जाता है। ओके, स्पर्म स्विम करते हुए फ्लूइड के रास्ते यूरेथ्रा में चला आया, देन ओके यूरेथ्रा दैट लाइज इन द पेनिस। यूरेथ्रा कहाँ है, पेनिस में लाइज करता है। दो पेनिस ऑर्गन जो होते हैं वो क्या करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं किसको, स्पर्म को। ओके, सो नाउ सी दो पेनिस, ओके, इट गेट्स डिस्चार्ज इनटू द वेजाइना ऑफ अ फीमेल। तो पेनिस क्या करता है, जो फीमेल के वेजाइना में क्या करता है, स्पर्म को छोड़ देता है वहीं पे, ठीक है। देन वहां पे क्या होता है फिर, जो स्पर्म है फ्यूज होता है किसके साथ, एक के साथ और ओवम के साथ, और क्या बनाता है वो, जाइगोट बनाता है। ओके, सो वंस अगेन लिसन, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या पढ़ा फर्स्ट, ओके, अ पेयर ऑफ टेस्टिस, टू स्पर्म डक्ट एंड पेनिस। ओके, सो तो टेस्टिस क्या किए, मेल और फीमेल गैमेट प्रोड्यूस किए जो मिलियंस की संख्या में होते हैं। अब सारे के सारे मिलियंस नहीं चले जाते हैं वो फीमेल फीमेल में, उसमें से कोई एक सिंगल सेल ही जाता है वहां पे। ओके, अब वो क्या करता है फिर, उसमें भी मान लो एक हेड होते हैं, मिडिल पार्ट होते हैं, टेल होते हैं। ओके, तो क्या होते हैं वो फिर मिक्स होता है, जब स्पर्म फ्लूइड से मिक्स होता है सीमन कहलाता है। सीमन क्या होता है, वो यूरेथ्रा के रास्ते कहाँ चला गया, पेनिस में, और पेनिस क्या करता है फिर, वो वेजाइना के, फीमेल के वेजाइना में चले जाते हैं। ओके, और वहीं पे क्या करते हैं, स्पर्म को लीव कर देते हैं, और क्या होता है वहां पे, व्हेन स्पर्म मिक्स विथ एग, ओके, ऑफ फीमेल, फीमेल के जब एग से या ओवम में जब मिक्स होते हैं तो क्या करते हैं वो जाइगोट का फॉर्मेशन कर देते हैं। सो नाउ व्हाट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? Okay, now before this, okay, now see what is the female reproductive system। तो मेल क्या है, फीमेल में पेयर ऑफ ओवरीज होते हैं, जैसे मेल में क्या होते हैं, पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं ना सेम, और पेयर ऑफ ओवरीज, इसमें क्या है, द ओविडक्ट्स होते हैं, इसी क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब, और यू कैन से एज द ओविडक्ट्स, एंड नेक्स्ट यूटेरस। ओके, सो नाउ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देखो ओवरीज स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द एग और ओवम व्हेन अ फीमेल रीचेस पुबर्टी। अभी हम पुबर्टी एक बार डिस्कस करेंगे, तो जब पुबर्टी एज में आती है ना फीमेल, तो क्या करती है फिर वो एग और ओवम का प्रोड्यूस करते रहते हैं, ठीक है ना। वन एग रिलीज फ्रॉम वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ, यानी टू क्या है, ओवरीज है ना यहाँ पे, अ पेयर ऑफ ओवरीज, तो वन ओवरीज क्या करती है, वन एग प्रोड्यूस करती है इन वन मंथ में। इन वन मंथ टू ओवरीज हैं, तो वन ओवरीज से क्या होती है, आफ्टर वन मंथ वन एग विल बी प्रोड्यूस। और ये जो एग होते हैं ना, इट्स आल्सो अ सिंगल सेल बट बिगर इन साइज इन कंपेयर टू द स्पर्म। अब जो एग जो फीमेल में जो प्रोड्यूस होते हैं, ये क्या होते हैं, स्पर्म के जो सेल्स से क्या होते हैं, वो थोड़े बड़े होते हैं। फिर द एग मूव्स इनटू द फैलोपियन ट्यूब फॉर द फर्टिलाइजेशन। और जब एग प्रोड्यूस हुए, ठीक है ना, तो क्या हुआ फिर, वो फैलोपियन ट्यूब से क्या होते हैं फिर मूव्स होते हुए कहाँ चले जाते हैं, फर्टिलाइजेशन के लिए वो चले जाते हैं वो। ओके, वंस अगेन पेयर ऑफ ओवरीज हैं, ओविडक्ट है, न्यूमोनाइजर, फैलोपियन ट्यूब है, एंड यूटेरस है वो। ओरिस क्या करता है फिर, ओरिस स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एग और ओवम व्हेन फीमेल रीचेस प्यूबर्टी। जब फीमेल क्या होती है, प्यूबर्टी एज में चले जाती है, तो क्या करते हैं, फॉर ईच मंथ वन ओवरिस प्रोड्यूस वन एग। ओके, एंड द एग इज आल्सो सिंगल सेल होते हैं वो, बट इट शुड बी बिगर इन द साइज कंपेयर टू द स्पर्म से क्या होती है, उनकी साइज बड़ी होती है, और एक क्या होते हैं, धीरे धीरे मूव करते हुए फैलोपियन ट्यूब के रास्ते वो फर्टिलाइजेशन के लिए पहुंच जाते हैं ना। और फर्टिलाइजेशन कैसे स्टार्ट होता है वहां पे, देखो होता है फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग इज इंटरनल प्रोसेस है ना, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। सो इन फैलोपियन ट्यूब व्हेन द स्पर्म एंड एग फ्यूज टुगेदर, जब फैलोपियन ट्यूब में क्या होते हैं, एग एंड स्पर्म दोनों क्या होते हैं, फ्यूज होंगे, देन क्या फॉर्म करेंगे फिर, जाइगोट, यानी मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स नोन एज स्पर्म एंड फीमेल गैमेट नोन एज ओवम और एग। जब दोनों क्या हुए, फैलोपियन ट्यूब में आ गए, तो वहां पे क्या होगा, इनका फर्टिलाइजेशन होता है, फिर क्या बनाते हैं वो, जाइगोट का फॉर्म करते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू लाइफ इनसाइड द मदर्स बेबी। जो फर्स्ट जो होता है जाइगोट फॉर्म होता है ना, एक तरह से वही क्या होता है, एक नया
सेल होता है और वहीं से क्या होता है, नए बेबी का फॉर्मेशन होता है। सो जैसे हम लोग जानते हैं ना, हमारी बॉडी बहुत सारी सेल से मिलकर बनी होती है ना, लॉट्स ऑफ मिलियंस ऑफ सेल इनसाइड इन आवर बॉडी, बट फर्स्ट टाइम और बॉडी स्टार्ट फ्रॉम अ न्यू सिंगल सेल। अब वही जो न्यू सिंगल सेल क्या है आपका जाइगोट होगा फिर, ओके। एंड नाउ एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट, व्हाट इज द एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट? अब वंस द फर्टिलाइजेशन इज ओवर, मानो फर्टिलाइजेशन ओवर हो गया, then zygote so form travel down the fallopian tube and the goes under the cell division that form a hollow spherical and multicellular ball of cell। जैसे फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाते हैं देन क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब में क्या होता है, सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाते हैं। फेलोपियन ट्यूब में क्या है, स्पर्म एंड एग है, ठीक है ना। वहां पे वो क्या है, ये बाइफ्यूजन जाइगोट फॉर्म हो गया। जब जाइगोट फॉर्म हो गया तो वहां पे क्या होते हैं, उनका वो डिवीजन होता रहता है। फेलोपियन ट्यूब में एक जाइगोट का डिवीजन होता रहता है। आफ्टर बहुत सारे डिवीजन होता रहो, क्या वहां पे हो जाता है, वहां पे सिंगल सेल से किस में बदल जाता है, मल्टी सेलुलर सेल्स में चले कन्वर्ट हो जाते हैं फिर, ओके। एंड देन अल्टीमेटली डेवलप इनटू डिफरेंट टिश्यू। वहां से क्या होते हैं, वो जाइगोट का जब डिवीजन होता रहता है तो क्या होता है, वहां से वो टिश्यू में कन्वर्ट होते हैं। अब वही टिश्यू क्या होते हैं, ऑर्गन में कन्वर्ट होते हैं, ऑर्गन ऑफ द बॉडी में हो जाते हैं वो फिर। एंड आफ्टर सम टाइम जो डेवलपिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द एम्ब्रियो। अब जैसे जैसे बेबी का जो स्ट्रक्चर होता जाता है ना, जाइगोट फॉर्म हुए आफ्टर डिवीजन, ओके, जाइगोट का डिवीजन होता गया, वेयर डिवीजन विल बी हैपन इन फैलोपियन ट्यूब ऑफ द फीमेल। तो आफ्टर द डिवीजन, ओके, देन सम टिश्यू विल बी फॉर्म, कुछ ऑर्गन बनते हैं बॉडी के में उसके बेबी के। तो ये सब जब चीज बनते जाते हैं क्या, एक एम्ब्रियो फॉर्म होता है, ओके। एंड इट गेट्स इम्प्लांटेड इन द वॉल्स ऑफ द यूट्रस। और ये क्या होता है, जो यूट्रस के वॉल पे क्या होता है, वहां पे वो प्लांट हो जाता है, ओके। और देन तब क्या होता है, डेवलपमेंट स्टार्ट होता है फिर, ठीक। देन डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल चेंज देयर मोर्फोलॉजी, शेप और साइज, क्या होते हैं, बहुत सारे सेल आते हैं और क्या एम्ब्रियो के शेप और साइज को चेंज कर देते हैं फिर। देन आफ्टर क्या होता है फिर, नाउ द स्टेज एट विच ऑल द बॉडी फॉर्म अगर कंप्लीट हो जाए, सारी की सारी जो बॉडी क्या होती है पार्ट्स, एम्ब्रियो अगर रिकग्नाइज हो तो क्या कहलाता है, फ्यूटस कहलाता है। नाउ इफ यू नो व्हाट इज द फ्यूटस, so you can say the stage at which all the body parts of the embryo could be recognized, it's called the fetus, okay। in human beings this stage reached after about 8 weeks of the fertilization। यानी फर्टिलाइजेशन के 8 वीक होने के बाद से फेटस का निर्माण होता है। जो भी जो बॉडी पार्ट जो छोटे छोटे बनने वाले होते हैं ना, वो बन जाते हैं, रिकग्नाइज हो जाते हैं, पता चल जाते हैं, तो वो स्टेज क्या कहलाता है, फेटस कहलाता है फिर। नाउ वन सेकंड सी, फर्स्ट क्या था, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हुआ, जाइगोट बना ना, जाइगोट कैसे बना आपका, ओके, स्पर्म एंड ओवम से जाइगोट फॉर्म हुआ। देन आफ्टर डिवीजन, ओके, क्या वो टिश्यू डेवलप हो गया, ऑर्गन में बदल गए वो, ऐसे जो डेवलप होते चलेंगे वो क्या कहलाते हैं, एम्ब्रियो कहलाते हैं। देन आफ्टर सम टाइम क्या होता है, जो सेल्स क्या होते हैं उनके जो शेप साइज चेंज होते रहते हैं और क्या टिश्यू परफॉर्मिंग स्पेसिफिक, जो टिश्यू जो क्या होते हैं स्पेसिफिक फंक्शन में तैयार हो जाते हैं, फिर उनके लेग होते हैं, हेड बनते हैं फिर, ओके। एंड ये जो स्टेज क्या कहलाता है, द स्टेज एट विच ऑल द बॉडी पार्ट्स ऑफ द एम्ब्रियो कुड बी रिकॉग्नाइज। ऐसा स्टेज जिसमें क्या होता है, एम्ब्रियो के सारे जो बॉडी पार्ट्स एक रिकॉग्नाइज हो जाते हैं, वो क्या कहलाता है फिर, फ्यूटस कहलाता है। तो ये स्टेज कब तक होता है, 8 वीक्स में क्या होता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है अच्छे से, ठीक है ना। और क्या कहलाता है, वो फ्यूटस कहलाएगा फिर। देन बेबी स्टेज एंड ग्रो इनसाइड द मदर्स ओम फॉर द अबाउट 40 वीक्स। और बेबी क्या होता है फिर, वो 40 वीक तक वहां पे क्या मदर्स के वोम में वो डेवलप होता जाता है फिर फुली। अब ऑल द बॉडी पार्ट्स एज्यूम द राइट साइज एंड द फॉर्म्स द मदर गिव्स बर्थ टू द बेबी। जब सारे के सारे बॉडी के पार्ट्स क्या अच्छे से राइट साइज हो जाते हैं, देन क्या होता है, मदर्स बेबी का फॉर्म कर देती है। सो वंस अगेन सी व्हाट इज हैपन, मेल प्रोड्यूस मेल गैमेट्स, फीमेल प्रोड्यूस फीमेल गैमेट्स। देन आफ्टर फ्यूजन स्पर्म एंड ओवम fused together to form zygote, and this process is known as a fertilization, okay। in fertilization in fallopian tube, okay, what happened, zygote is formed, then zygote, okay, there will be a cell division, okay, cell division is continuously happen, okay, and some organs will be prepared, okay, and a lots of tissue will be prepared, okay। then after some time, okay,
there will be some shape and size will be generate in mother's womb. टिश्यू कुछ होते हैं जनरेट हो जाते हैं लाइक हेड, ओके, हैंड्स, लेग्स, ये सब चीजें क्या बननी शुरू हो जाती हैं. तो क्या होता है कुछ एक ऐसा फोर्टिस का एक वर्ड आता है, तो फोर्टिस क्या कहलाएगा, व्हेन दिस स्टेज एट विच ऑल द बॉडी पार्ट्स क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ द एम्ब्रियो कुड बी रिकॉग्नाइज. अगर जो एम्ब्रियो के सारे जो पार्ट्स रिकॉग्नाइज जो हम पहचान ले तो वो स्टेज क्या कहलाता है, दैट इज नोन एज अ फोएटस. ओके, एंड इट इन ह्यूमन बीइंग्स जो फोएटिस का जो स्टेज होता है आफ्टर 8 वीक्स के बाद आता है फिर. ओके, एंड देन बेबी ग्रोज, ओके, इन मदर्स वomb आफ्टर 40 वीक्स डेवलप फुली. देन आफ्टर व्हेन अच्छे से सारे बॉडी पार्ट जनरेट हो जाते हैं, देन मदर्स गिव्स बेबी. नाउ वन वर्ड वी once again discuss as a puberty. Okay, so puberty is the period of the sexual maturity during the adolescence when the reproductive organs become functional. जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं, फंक्शनल में आ जाते हैं, तो क्या वही एज क्या कहलाती है, पुबर्टी कहलाती है. ओके, जो मेल में जो पुबर्टी एज कब आती है, 13 to 18 ईयर्स में आती है. यानी कि व्हेन मेल एज विल बी 13 to 18, ओके, देन देयर विल बी ग्रोथ ऑफ हेयर ऑन द फेस, डेवलपिंग ऑफ वॉइस, मसल्स बनने शुरू हो जाते हैं मेल्स में. ओके, एंड प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म बाय द टेस्टिस. टेस्टिस से क्या होते हैं, स्पर्म भी बनने शुरू हो जाते हैं. फीमेल में क्या होता है, इट शुड बी हैपन इन द 10 to 17 years. When a female becomes 10 to 17 years, okay, then their enlargement of breast, broadening of hip region, and the beginning of menstruation cycle will be start. And these changes are caused by the hormones. ये सब जो changes आते हैं ना, जैसे मेल में आ गए हेयर का बढ़ना, बालों का बढ़ना, ओके, डेवलपिंग ऑफ वॉइस का चेंज होना, फेस और बॉडी का चेंज होना, मसल्स का चेंज होना, ओके, एंड फीमेल में ब्रेस्ट का चेंज होना, ठीक है ना, हिप रीजन वगैरह चेंज होना, एक साइकिल जो बनती है वो स्टार्ट हो जाना. दिस शुड बी हैपन हार्मोन्स. द हार्मोन नोन एज टेस्टोस्टेरोन. इन मेल्स में कौन सा हार्मोन्स आते हैं, दैट इज नोन एज टेस्टोस्टेरोन. हार्मोन की वजह से मेल में चेंजेस होते हैं, एंड एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से इन फीमेल चेंजेस. फीमेल में जो चेंजेस आते हैं बॉडी में ड्यू टू एस्ट्रोजन हार्मोन्स, एंड इन मेल if there will be changes it should be a testosterone. So now once again, reproduction is the process by which living being produce young ones of their own kind. reproduction जब एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, लिविंग क्या होती है, अपने जैसा एक यंग वन को प्रोड्यूस करते हैं. फिर asexual reproduction are those reproduction in which new individual are produced from a single parent. सिंगल पेरेंट से क्या होता है, एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होता है. इसमें कोई मेल और फीमेल की जरूरत नहीं होती है. ओके, इसमें गैमेट भी फॉर्म नहीं होते हैं. इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन एंड द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स. इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, और इसमें क्या होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट बोथ आर द हैपनिंग. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अ पेयर ऑफ टेस्टिस हो गए, 2 स्पर्म डक्ट एंड पेनिस, दीज आर द मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेन क्या है आपके, पेयर ऑफ ओवरीज, द ओविडक्ट्स को हम क्या बोलते हैं, वी कैन से एज अ फैलोपियन टिप, यूट्रस हो गए. When male produce male gametes, female produce female gametes. Male gametes known as sperm, female gametes known as a ovum. When male gametes fuse to female gametes, okay, they form a zygote, and then zygote convert into embryo, embryo convert into baby. Is it clear? So I think today's topic is complete. Okay, thank you.